Hello, good morning everyone. In the last chapter 2, we have learned about the kings and kingdom of our country. And now in third chapter, we will learn about the Delhi Sultanate. In this chapter, we have learned about the Turkish ruler in India, Mamluk dynasty in India, who is established by the Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak was the founder of the first ruler, what came to be known as the Delhi Sultanate. Under him, the modern day Afghanistan and a large part of northern Indian subcontinent formed the Delhi Sultanate. He initially ruled from the Lahore, but he shifted his capital to Delhi later. Aibak was nicknamed Lakh Baksh or the giver of lakhs due to his generosity. The Quwaitul Islam Mosque in Delhi and the Adhai Din Ka Jhopla in Ajmer were built by the Qutbuddin Aibak. He also initiated the construction of Qutub Minar but was unable to complete it. He died in an ancient in 1210 CE while playing Chogan, a kind of polo on horseback. स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर था दिल्ली सल्तनत का। उसके अंडर अफगानिस्तान, नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ये सभी दिल्ली सल्तनत के अंडर में ही आते थे। वो वैसे तो अपने अपने जो है जो राज्य का जो है गवर्न करता था लाहौर से, लेकिन उसने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर ली। उसका नाम लाख बख्श भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक मेड अढ़ाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर एंड कुवैतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। ड्यूरिंग हिज पीरियड he constructed also the Qutub Minar, but he was unable to complete it. He died in an ancient in 1210. वो 1210 में उसकी मृत्यु हो गई जब वो चौगान खेल रहा था। चौगान एक टाइप का पोलो होता है जो हॉर्स के बैक पे खेला जाता है, जिसको आज हम हॉर्स बैक पोलो भी कहते हैं। आफ्टर हिज डेथ his throne was succeeded by a trusted slave of Qutbuddin Aibak named Iltutmish. He was not only a slave but also his son-in-law of Qutbuddin Aibak. He is regarded as the historian, the real architecture of the Turkish rule in India. It means Iltutmish जो था वो वास्तविक रूप से जो है तुर्की रूल को इंडिया में स्थापित करने वाला सुल्तान था। ही असेंडेड द थ्रोन, उसने उस शासन को 1210 में संभाला। डिस्पाइट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम द तुर्किश नोबिलिटीज एंड द एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स विद अ व्यू टू विनिंग द सपोर्ट ऑफ नोबल्स, ही ग्रांटेड them land and focus his attention on his strengthening the empire. He conquered Ranthambore, Bayana, Mandor and Jalore while crushing the revolt in Bengal and Bihar and annexing them in his empire. He also strengthened the northwestern frontier to safeguard it against the Mongol invasions. To make his administration efficient, Iltutmish organized the Turkish nobility into a select group of 40 nobles called the Chalisa or the Chahalgani. इल्तुतमिश ने रणथंबोर, बयाना, मंडोर एंड जालोर इन सभी को एक रिवॉल्ट क्रश करके जो है बंगाल और बिहार में उसने उस सभी को अपने कब्जे में कर लिया। उसने अपना शासन, अपनी जो प्रभुत्ता नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में बहुत ज़्यादा उसने बढ़ा ली। उसने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए एक
कमेटीज को हम कहें या एक सेलेक्टेड द टीम एडमिनिस्ट्रेशन उसने बनाया, जिसमें 40 लोगों को उसने सेलेक्ट किया जो बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी थे, और उसको नाम दिया उसने चालीसा या चहलगानी। आफ्टर द डेथ ऑफ द इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश वॉज ओनली वन मुस्लिम या और फर्स्ट वुमेन ruler of the Delhi, referring to her Minhaj-ul-Siraj, chancellor of this period. He says, she was a great monarch, wise, a dispenser of justice and protector of his subjects, but born of the wrong gender. So in the estimation of the man, all her virtues were worthless. इट मीन्स रजिया सुल्तान मुस्लिम होते हुए भी दिल्ली की पहली महिला शासक थी। मिनहाज उल सिराज उस समय के एक चांसलर से उन्होंने उसके बारे में कहा कि वो एक बहुत बुद्धिमान शासक थी और बहुत न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ध्यान देने वाली, बट वो एक रॉन्ग जेंडर में उसका जन्म हो गया था, इसीलिए जितने भी उसके पीरियड के उसके जो राज्य में जो मैन थे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो उसके अंडर में काम करना नहीं चाहते थे। अपोजिंग द जेंडर बियास एंड द कल्चर ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हर एज, शी वोर द मेल अटायर एंड द अपीयर्ड इन पब्लिक विदाउट एनी वेल। ही एस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द एम्पायर। ही रूल्ड triggered a power struggle between the Sultan and the Chalgani. The nobility opposed her rule and also disapproved of the high position she granted to her Ethiopian slave Yakut. Eventually, they revolt against her. She was killed as a part of the conspiracy by the nobles while she was on her way टू रिक्लेम हर अम्पायर। उसने अपने एक स्लेव याकूत के ऊपर बहुत विश्वास किया और उसको एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे उसको रखा, लेकिन फिर भी उसके रास्ते में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई उसी के विश्वास पात्रों और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी मिनिस्टर्स थे उसके द्वारा। उसी के मिनिस्टरों के द्वारा उसकी रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। नसरुद्दीन मोहम्मद एंड गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान सक्सीडेड बाय हर ब्रदर नसरुद्दीन मोहम्मद। ही डाइड इन 1266 एंड वॉज सक्सीडेड बाय गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान का जो राज्य था उसके भाई नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा सक्सीड किया गया और नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु 1266 में हो गई। उसके बाद उस राज्य को गयासुद्दीन बलबन ने संभाला। हिज प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ द